Hello students, now our next topic is about the contribution of agriculture to the national economy, employment and output. Agriculture plays an important role as it is the backbone of Indian economy. क्यों ये इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है? क्योंकि इंडिया में जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सबको रॉ मटेरियल चाहिए और वो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर से. So it has been the backbone of Indian economy through its share in the gross domestic product, that is GDP, has registered a declining trend from 1951 onwards. In 2010-11, about 52% of the total workforce was employed by the farm sector. Declining the share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern because any decline and stagnation in agriculture would lead to a decline in other spheres of economy having wider implications for society. तो अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं करेगा, अगर एग्रीकल्चर में लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे या डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में नहीं होगा, सो इट विल स्टैग्नेट, मतलब ये रोक देगा हमारे डेवलपमेंट को. क्योंकि ओवरऑल जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितने भी बिजनेस हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? And those depends on this agriculture. So establishment of Indian Council of Agricultural Research, that is ICAR, agricultural universities, veterinary services and animal breeding centers, horticulture development, research and development in the field of meteorology and weather forecast etc. were given priority for improving Indian agriculture. So government of India ने फोकस किया और हमारा पहला 5 ईयर प्लान जो बना था, जैसे कि मैंने आपको बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फोकस किया था इंडियन इकोनॉमी पर. और वो इकोनॉमी जो थी वो किस पे फोकस किया इन्होंने? एग्रीकल्चर पे. सो एग्रीकल्चर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इंडियन इकोनॉमी. You can see here the graph or the data of the India, that is growth of GDP and major sectors. So the GDP for the year 2002 and 7 it was 7.2 total. Then for 11th 5-year plan, from agriculture it was 3.2, from industries it was 7.4, from services it was 10.0, and total the GDP was 8.2. So you can see the agriculture the percentage, it is moving upward from 1.7 to 4.2. So it is the backbone actually of Indian economy, since it is producing raw material for the industries and factories. Though GDP rate is increasing over the years, it is not generating sufficient employment opportunities in the country. Obviously अगर प्रोडक्शन तो हो रहा है, जिस तरह से GDP इंक्रीज़ हो रही है, obviously वैसे अभी लो चल रही है, जो भी डेटा अगर दिया है उस हिसाब से देखें तो जो अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की वो कंट्री में नहीं जनरेट हो रही है. ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल इज़ डीसेलरेटिंग. एग्रीकल्चर की ग्रोथ रुक चुकी है. उसके भी बहुत से रीजंस जो हम आगे पढ़ेंगे. Indian farmers are facing a big challenge from international competition, and our government is going ahead with reduction in the public investment in agriculture sector. गवर्नमेंट हमारी जो है वो एग्रीकल्चर पे अब जो फोकस नहीं कर पा रही है, उसका फोकस, उसका ध्यान कहीं और है. और इस वजह से क्या है कि इंडियन फार्मर्स को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. और अगर इंडियन फार्मर्स को हम वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं कराएंगे जो उनके प्रोडक्शन में काफ़ी आसानी उनको दे, तो वो भी गिव अप कर देंगे. और अगर फार्मर्स गिव अप कर देंगे तो फिर इंडियन इकोनॉमिक्स का क्या होगा ये आप जान ही रहे हैं. सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज़ डिक्रीज्ड लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर हम फार्मर्स को रिडक्शन नहीं करेंगे उनके रेट्स में, फार्मर्स को हम सब्सिडी नहीं देंगे, वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे. और प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो डिक्रीज़ होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में. Reduction in import duties on agricultural product have proved harmful to agriculture in the country. Import duties पर अगर हम restriction नहीं लगाएंगे तो वो harmful होगा agriculture में in our country. Farmers are withdrawing their investment from agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture. आप देख रहे हैं किस तरह से न्यूज़ आप देखेंगे किस तरह से फार्मर्स जो हैं वो डेप्थ लेके, कर्ज़ा लेके इतना ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, उसमें डेप्थ ट्रैप में पड़ जाते हैं कि उनको वापस नहीं कर पाने की वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं. सो अगर फार्मर्स को हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फार्मर्स को हम फ्री नहीं रखेंगे, तो हमारा एम्प्लॉयमेंट, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा. और अगर एग्रीकल्चर डाउन हो गया तो हमारी जो GDP है, हमारा जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी. अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो हमें फूड को क्या करना होगा? सिक्योर करना होगा.
What is food security? In order to ensure availability of food to all sections of society, our government carefully designed a national food security system. सब तक खाना पहुंच जाए। आप देखे होंगे राशन शॉप होगी और बहुत सी शॉप्स हैं जिन पर कम पैसे में सामान मिलता है, सब्सिडी मिलती है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि सब तक वो सामान पहुंचे जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करा रही है या अवेलेबल करा रही है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। क्या कंसिस्ट कर रहा है? फूड सिक्योरिटी, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये 2 कंपोनेंट हैं फूड सिक्योरिटी के। फूड सिक्योरिटी की एक्चुअली डेफिनेशन देखें तो वो चीज़ जो हमें एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो और अवेलेबल हो, इसी को हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। खाना का जो भी हमें खाने के सामान है वो अवेलेबल भी होना चाहिए और अफोर्डेबल भी होना चाहिए और एक्सेसिबल भी होना चाहिए, तब जाके हम फूड को सिक्योर कर सकते हैं। PDS, that is Public Distribution System, is a program which provides food grains and other essential commodities at subsidized prices in rural and urban areas. So subsidy मिलती है हमको किसी भी सामान पर, जिससे सामान जो होता है वो रेट उसका सही होता है, जिससे हर इंसान, हर कम्युनिटी का पर्सन उसको खरीद सके। The primary objective of this policy is to ensure food grains to common people at affordable prices. सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फोकस होता है PDS का वो ये होता है कि गरीबों तक खाना बहुत आराम से सस्ते दाम पे पहुंच जाए। The policy focuses on growth in agriculture production and on fixing the support price for procurement of wheat and rice to maintain the stock. और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फार्मर्स के थ्रू, जो फार्मर से सामान ख़रीदा जाता है, जो गवर्नमेंट फार्मर से सामान खरीदती है, वो भी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जिससे फार्मर्स को भी नुकसान ना हो और गवर्नमेंट को भी नुकसान ना हो। गवर्नमेंट का हो जाए नुकसान कोई बात नहीं, लेकिन फार्मर का नुकसान नहीं होना चाहिए। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ FCI, procures and stock food grains whereas distribution is ensured by PDS. सो FCI जो है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका काम है कि फूड ग्रेन्स को ये प्रोक्योर करे, मतलब जमा करे, एक जगह इकट्ठा करे और फिर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका है? PDS का, दैट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर हम एक फैक्ट पे देखें तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट वेस्टर ऑफ फूड। अगर हम एक फैक्ट देखें, एक डेटा देखें, तो सबसे ज़्यादा वेस्ट होने वाला जो देश है कम खाने को करने वाला, वो है इंडिया। क्वेश्चन है कि हाउ आर फूड ग्रेन्स प्रोक्योर्ड, कैसे हम किसी भी फूड ग्रेन्स को हम बचा सकते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। अगर हम कोई तरीका अपना रहे हैं तो उसका कुछ प्लस पॉजिटिव पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट। FCI procures food grains from the farmers at the MSP, that is minimum support price। वो कम दाम पे फार्मर से लेगी और फिर वो बेचेगी, PDS के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करेगी। द गवर्नमेंट यूज टू प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, वाटर एटसेट्रा, बट दीज हैव नाउ रीच्ड सस्टेनेबल levels and have to and also led to a large scale inefficiency in the use of these scarce inputs. Excessive use of water and fertilizers have led to waterlogging, salinity and depletion of micronutrients in the soil. अगर देखिए, अगर ज़्यादा यूज़ होगा वाटर का और फर्टिलाइज़र का तो वो वाटर लॉगिंग होगा। वाटर लॉगिंग मतलब वो पानी को जमा देगा एक जगह, जिससे क्रॉप्स जो होंगे वो ख़राब हो जाएंगी। दूसरा है सैलिनिटी, वो नमकीन ज़्यादा पानी हो जाएगा जिससे क्रॉप्स ख़राब हो जाएगी। और तीसरा है डिप्लीशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो सॉइल्स के लिए ज़रूरी है न्यूट्रिएंट्स, अगर वो ख़राब हो जाएंगे तो प्रोडक्शन जो होगा वो ख़राब हो जाएगा। The high MSP subsidies in input and committed FCI purchases have distorted the cropping pattern. Wheat and paddy crops grown in Punjab and Haryana are from the MSP they get, which has created serious imbalance in the intercrop parities. सो ये सारे क्या है? डिसएडवांटेजेस हैं। हाउ आर कंज्यूमर्स डिवाइडेड, व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेज। कैसे कंज्यूमर डिवाइड है FCI में और PDS के थ्रू? कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इनटू 2, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन, BPL एंड APL। ये आपने कार्ड देखा होगा BPL और APL का। However, this categorization is not perfect as a number of deserving poor are excluded from BPL category and some of the so-called APL slip back to BPL. Some of the failure of one crop and it's administratively difficult to accommodate such shifts. So आपने देखा होगा कि जो रियल के हैं, जिनको ज़रूरत वाकई है, वो नहीं बनवा पा रहे अपना कार्ड BPL, और जिनके पास है वो उनका अलग से BPL कार्ड बना है और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। सो बहुत ही मुश्किल इनको मेंटेन करना, किसको सही समझा जाए किसको गलत समझा जाए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। हाउ कैन वी बिकम सेल्फ सफिशिएंट। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो हम अपने आप को कैसे
कैसे सफिशिएंट बना लें कि हाँ भाई जितना चीज़ है उतना हम उसी से अपना जो भी है इसको गुजार सकें, सर्वाइव कर सकें। सेल्फ सफिशिएंसी कैन बी अटेन्ड इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स प्रॉपर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिटेड लिंकेज एंड ऑल्सो इंकरेजेस द यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्निक। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को फॉलो करवा दे कि हमें लेटेस्ट टेक्निक जितनी भी होगी उतना हम यूज़ करें, तो हो सकता हो कि इसमें प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा हो। Instead of concentrating only on wheat or rice, the food crop with the better growth potential in that particular area might be encouraged। भाई ज़रूरी नहीं कि हर जगह सेम क्रॉप होगी, जिस जगह जैसी सॉइल होगी वैसी क्रॉप होगी। सो अगर हम वीट और राइस पे फोकस करने की जगह अगर हम वो क्रॉप्स को देखें जो क्रॉप्स उस जगह सुटेबल होगी ग्रो करने में, तो हमें और फ़ायदा हो सकता है। Creation of necessary infrastructure like irrigation facilities, availability of electricity, etc. may also attract private investments in agriculture। Obviously अगर जो भी चीज़ें हमको ज़रूरत चाहिए प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, अगर हम वो चीज़ अवेलेबल कर देंगे तो हमारे फार्मर्स भी उसको ग्रो करने में काफ़ी उनको हेल्प होगी और वो प्रोडक्शन ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। The focus on increasing food grains production, which should be sustainable basis, and also free trade in grains will create massive employment and reduce poverty in rural areas। अगर हम गांव की बात करें तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो डिपेंड किस पे हैं, एग्रीकल्चर पे। और अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को और एक्सपेंड करते हैं तो हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ पर लोग उसमें बिजी होंगे और लोग प्रोडक्शन करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्शन अच्छा भी होगा और ज़्यादा भी होगा। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी। इस हिसाब से इंडिया का क्या प्रोडक्ट अगर प्रोक्योरमेंट देखें, क्या चीज़ देखें, अगर इंडिया फूड सिक्योरिटी में कैसा फ्यूचर रहेगा उसका। सो शिफ्ट फ्रॉम कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स टू कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, दिस आर लेड टू रिडक्शन ऑफ नेट्स ऑन एरिया अंडर सीरियल पल्सेस। सो अगर हम प्रोडक्शन करें सिर्फ एग्रीकल्चर का ही नहीं, हॉर्टिकल्चर भी करें तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है। Competition for land between non-agricultural users and agriculture has reduced to nets on area. Productivity of land is declining due to fertilizers, pesticides and insecticides। फ्यूचर फूड सिक्योरिटी की वजह से क्या है कि हमारा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, और वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की भीड़ में, की होड़ में, की रेस में, उसमें क्या है कि हमारी लैंड जो है वो डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि लोग ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, ज़्यादा इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं। Scarcity of water has led to reduction of area under irrigation, whereas inefficient water management has led to water logging and salinity। ज़्यादा पानी और कम पानी से भी क्या होगा, क्रॉप्स हमारी ख़राब होंगी। सो पानी की फैसिलिटीज़ ऐसी बनाएं कि उसमें ना ज़्यादा पानी पड़े ना कम पानी पड़े। इस तरह से हम फूड को सिक्योर कर सकते हैं। So this is the food grain production million tons of India data. It is here. You can see for the rice for 2006 and 7, 7 and 8, 8 and 9, 9 and 10, 11, 12. Production of rice is continuously increasing. In 2009 and 10, it decreased up to 89.10%. Wheat also it increased. Coarse it has increased. Pulses also increased. So for total in 2006 and 7 it was 201.4 million tons, and in 2010 and 11 it is 215.8 million tons। so फूड सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे इंडिया के लिए। Why has food grains production remain stagnant or fallen for 5 consecutive years from the above टेबल। जो हम टेबल देखा कैसे स्टैगनेंट रही है, गिर गई है, क्यों कम हुई। द रीजन्स आर, सबसे पहला रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन। जब ज़मीन ही सही नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा। रिड्यूस्ड वाटर शॉर्टेज स्टोरेज इन एक्विफायर्स ड्यू टू अनसस्टेनेबल पंपिंग, पानी की कमी। इन एडिक्वेट स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़, फार्मर्स हैव टू पे हाई प्राइसेस फॉर HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, बट लैक बार्गेनिंग पावर टू फिक्स प्राइसेस इन देयर फेवर। फार्मर्स को जितना प्रॉब्लम क्रिएट की जाएगी, फार्मर्स उतना ही कम प्रोडक्शन करेंगे। सो बेहतर होगा फार्मर्स के फेवर में अगर हम काम करें तो हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और ज़्यादा होगा। हायर द सप्लाई लोअर इज़ द डिमांड, दिस कॉज डिस्ट्रेस लेवल। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगा तो उसका सामान का जो रेट होगा वो क्या होगा, अपने आप डिक्लाइन हो जाएगा। देयरफॉर देयर कैन बी नो फूड सिक्योरिटी विदाउट सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स। अगर हम छोटे फार्मर्स को सिक्योर नहीं करेंगे तो फूड सिक्योरिटी भी मुश्किल है इंडिया के लिए। ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन मतलब बोलते हैं कि बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो एग्रीकल्चर का जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबलाइजेशन पे, और ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो एग्रीकल्चर पे, उससे काफ़ी असर पड़ा है। अगर हम किसी भी सामान को ख़रीदते हैं या बनाते हैं तो उसके लिए मुझे चाहिए रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर पे। अगर हम किसी दूसरी कंट्री में अपना सामान बेच रहे हैं या दूसरी कंट्री हमको अगर कोई सामान बनाने का ऑर्डर देती है तो हमें उसको एक टाइम पे बनाना होगा।
अब टाइम पे बनाने के लिए हमको चाहिए उस सामान का रॉ मटेरियल, उस चीज़ का रॉ मटेरियल अगर नहीं आएगा तो हम फोकस करेंगे एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर में हम प्रोडक्शन ज़्यादा करने के चक्कर में हम फर्टिलाइजर्स डालेंगे, इंसेक्टिसाइड ज़्यादा डालेंगे, और ज़्यादा डालने से क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो सॉइल्स को ख़राब कर देंगी और प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। ये है इम्पैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। सो वी कैन मेक इट प्रॉफिटेबल, एग्रीकल्चर वी मेक इट प्रॉफिटेबल अगर इसको हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें तो। अगर इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन जो होगा वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मतलब जो एग्रीकल्चर जिसमें प्रैक्टिस की जाती है विद किसी भी केमिकल्स, किसी भी फर्टिलाइज़र के थ्रू अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो कैसा होता है एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। सो इंडियाज़ डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस टू ग्रो अ वाइडर रेंज ऑफ हाई वैल्यू ऑफ क्रॉप्स। अगर हम इंडिया क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चलें तो हमारे पास क्रॉप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तरीके से ग्रो हो सकती हैं। So the chapter is over. Again we have George Washington's quote, that is, I would rather be on my farm than be emperor of the world. जॉर्ज वाशिंगटन ने ये बात कही कि मैं अपने घर, अपनी ज़मीन पे खेती करूं, उस ये बेहतर है बजाय कि मैं पूरी दुनिया पर राज करूं। सो रियली ही वॉज अ ग्रेट मैन. He said about agriculture, and it was true that India is totally dependent on agriculture and we have to focus on agriculture. Thank you so much. The chapter is over. If you have any doubt, we can discuss it afterward.